Very good morning to all of you. It is a joyful moment to come in the presence of God and read the word, share the word, spread the word of God. And today I'm happy and joyful and want to give you blessings and greetings on this particular day. Easter, happy Easter to all of you. Happy and blessed Easter to all of you. Happy and blessed Resurrection Day to all of you. And before we start sharing the word, let's pray to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Father God, we come in your presence, Lord, and we ask more spiritual understanding, power of the Father, Son, and the Holy Spirit to understand the word, Lord, to understand your crucifixion and the third day, your resurrection, Lord. Through that resurrected power, we are also redeemed and resurrected. We are thankful, we are grateful to you for all your blessings, for all your favor. You are faithful, Lord. Help us so that we can also follow that path, the path of righteousness, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Amen. Hallelujah. So, resurrected power, when we talk about this particular word, resurrection, the rising from the dead of a divine or human being who still retain his own personhood or individuality. When we define it, it is we can say like this: the person will be same, the personality or personhood or individuality will be same. Like Jesus was the same when he raised from the dead, and resurrection means coming back to life. So third day Jesus came. On this particular day Jesus came back to his life, and uh, divine proof through the word of God, through the Bible we can see. And it was divine, it was divine, miraculous, we can say. Third day Jesus miraculously rose again, and still alive and alive forevermore. Hallelujah. Hallelujah. And I want to bless all of you. And it is written in John chapter 11, Jesus said, I am the resurrection and the life. So through Jesus we received life, and we received this the power of divine power of resurrection, or resurrected life. And may this I speak on each one of us. May this resurrection power of Jesus Christ bring hope, love, peace, and joy in our hearts. And may uh, because as Jesus, he has risen, and death could not hold him. Rejoice in the resurrection of Jesus Christ. He lives forevermore. Hallelujah. He lives forevermore. And it was prophesied. It was a prophetic word. Psalm chapter 16, verse 10 and 11. We can say 11. I'll read in front of you. It is written here, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasure forevermore, forevermore. Hallelujah. And when we read from the New Testament, we read First Corinthians chapter 15, verse 51 says, we all will be changed because Jesus, we are worshipping our Lord who is alive forevermore, and we are uh, uh, worshipping the living God. And
through that resurrected power, we also receive the same divine power, and we will be changed, and we will live forevermore with our Lord. It is written in the First Thessalonians chapter 4 verse 17 says, raised to forevermore be with the Lord. Hallelujah. And this is for all of us. Hallelujah. हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो ये सारी ब्लेसिंग्स को हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। आमेन, आमेन। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जिस तरह से हम पूरे इस हिस्से को पढ़ते हैं, इस बाइबल के इस पर्टिकुलर हम कहते हैं कि सच्चाई को, रियलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमें मजबूत करता है, सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते जाएं। और वो जो रिजरेक्टेड पावर की हम बात करते हैं, वो रिजरेक्टेड पावर को हम रिसीव करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। हालेलुया। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे वचन के ऊपर बात करने वाले लोगों ने बात करी, और परमेश्वर के चुने हुए अनॉइंटेड लोगों ने हमसे बात करी। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हैप्पी ईस्टर कहते हैं, हैप्पी रिजरेक्टेड डे कहते हैं या रिजरेक्शन डे कहते हैं। और इसमें बरकरार रहते हुए, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, और मैं भी इसी तरह से आप ही का एक हिस्सा हूँ, आप लोगों के बीच में से ही मैं भी विश्वास करता हूँ बाइबल के परमेश्वर के ऊपर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर। और इसका जो सिलसिला था, जो रिजरेक्टेड पावर का, क्रूस पर ही जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना आखिरी वचन जब बोला, उस समय वहाँ लिखा है कि इसको हम पढ़ सकते हैं बुक ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 27 में, और उसको पढ़ सकते हैं कि वहाँ किस तरह से बहुत मिराकलसली बहुत सारे शब्द जो थे पवित्र लोगों के जी उठे, और ये सिलसिला तभी शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और आज भी जिंदा हैं और हमेशा जीवित हैं। अब ये समय है कि हम दूसरी सेकंड कमिंग के लिए, उनका प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने जो उत्पत्ति से पहले ही सारा इंतज़ाम था, प्रोफेटिकली ये सब कुछ हुआ, प्रोफेसीज हुई, और उनके जन्म के ऊपर उनके सारा इंतज़ाम किस तरह से हुआ, कहाँ जन्म होना है वहीं पे जन्म होना हुआ, और ये सारी प्रोफेटिकली लिखा हो गया पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। और उसके बाद उनके क्रूसिफिक्शन के बारे में प्रोफेसीज हुई, और जी उठने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी प्रोफेटिक वर्ड जब वो सेवकाई कर रहे थे तो बोला अपने लिए कि तीसरे दिन वो फिर से इस मंदिर को खड़ा कर देंगे। वो मंदिर को अपने आप को, अपने शरीर को कह रहे थे कि, क्योंकि हम कहते हैं ना, ये शरीर हमारा, ये देह हमारी जो है आत्मा का मंदिर है, हमारे परमेश्वर का मंदिर है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लिए खुद भी प्रोफेटिक वर्ड्स बोले, और वो तीसरे दिन जी उठे डिवाइन पावर के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलके जो संसार के अपने बेटे और बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने दासों को, अपने लोगों को बचाने का जो इंतज़ाम किया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उत्पत्ति से ही सब कुछ प्लान था। और जिस तरह से हम कहते हैं, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, और आपको पता है 2 व्यक्ति थे इर्द गिर्द, और एक ने तो नहीं पहचाना, लेकिन जिसने पहचान लिया उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और उसको उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और वो जो तीसरे स्वर्ग की जो बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कर दी, या जहाँ पर पौलुस भी विजिट किया। पौलुस ने भी, जब हम कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पौलुस ने भी उसको विजिट किया, क्योंकि 7 हेवन्स जो बनाए थे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हेवन में, जब हम उसके संतान होने के नाते बात करते हैं, तो सबसे बड़ा रोल था एंजल्स का।
और सोचो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब भी जिब्राइल कितना बिजी रहा होगा, कभी इसके पास जाना, उसको संदेश देना, उसको संदेश देना, क्योंकि वहाँ पर वो सारा इंतज़ाम होना ज़रूरी था और वहीं पर बर्थ होना, यरूशलेम में ही सारे इंतज़ाम होने बड़े ज़रूरी थे। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो जब हम देखते हैं यहाँ पर भी जिस दिन तीसरे दिन वो जी उठे, तो जब मरियम मगदलीनी और उसके साथ एक और महिला उसके साथ जब जाती विजिट करने को, रूटीन उस समय के कल्चर के अनुसार, तो वहाँ पर भी एंजल की स्वर्ग से ड्यूटी लगाई गई थी कि वो जी उठा है। और वहाँ उस एंजल ने बोला भी कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, वो जी उठा है अपने कहे अनुसार, उसके याद करो उसके शब्दों को। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय जी उठे और उस समय उन महिलाओं को प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया और उनको पहले सुसमाचार प्रचारक बना दिया। हालेलुया। सबसे बड़ा उसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों तक सबसे बड़ा संदेश वही महिलाएं लेके गई और उन्होंने बताया इस बड़े एक मिराकलस, हम कह सकते कि मिराकलस डिवाइन रिजरेक्शन को जो प्रभु यीशु मसीह की हुई। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी उनसे मिले, उनको उनमें से एक चेला ऐसा भी था जिसने जब तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों को छू के नहीं देख लिया तब तक वो माना नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो विश्वास हम करें उस बात के ऊपर कि हमारा यीशु, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है और आज भी जीवित है और हमेशा युगानुयुग एक सा है और जीव हमसे बहुत प्यार करता है। इसने 2023 साल पहले मेरे और आपके लिए उस बड़ी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन जी भी उठे और आज भी जिंदा है। और मेरे लिए और आपके लिए ये सारे इंतज़ाम हुए ताकि हम लोग उद्धार की इस ज़िंदगी को हम लोग उस साल्वेशन पाए हुए लोग कहलाएं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं और स्वर्ग के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बरकरार रहे और अपनी अच्छी विटनेस को हम दे सकें पृथ्वी पर रहते हुए। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया हम उसको याद रखें और हमेशा विश्वास में बरकरार रहें, बने रहें और उसमें आगे बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा है और बना रहेगा और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ये यूहन्ना को जब रेवलेशन बताया तो ये नए यरूशलेम, ये सिलसिला बाग-ए-अदन से ही शुरू हुआ था और बाग-ए-अदन पे ही ये ख़त्म होगा, क्योंकि जब नए यरूशलेम की हम बात करते हैं तो नया यरूशलेम आप पढ़ सकते हो द बुक ऑफ रेवलेशन में, और वहाँ ना मृत्यु होगी ना रोना होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को माना और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। कई बार कई मुश्किलें आती हैं, कई ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। उनका वायदा है कि आई विल बी विद यू फॉर एवर। वो हमेशा हमारे साथ हैं, उनका वायदा है। उन वायदों को, उन प्रोमिसेस को, उन कवनेंट्स को याद रखें जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आए हम दुआ करें। हालेलुया। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम आपकी संतान, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु आपके सम्मुख आए हैं इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इनका आंसर देते हैं। प्रभु जो प्रभु बोया जा रहा है उसको फ्रूटफुल करना पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी संसार भर में आपके बेटे और बेटियां, आपके बेटे, आपके संतान, आपके दास, आपके प्रभु सिखाए हुए लोग पिता जब वचन को फैलाते हैं, खासकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले पिता परमेश्वर हम आपको इनवाइट करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके बिना ये सारी सेलिब्रेशंस, ये खुशियाँ, ये एक दूसरे को ग्रीट करना, ये अधूरा होगा। क्योंकि जब आप साथ होंगे, आप बीच में होंगे हमारी खुशियों में, क्योंकि ये खुशियाँ, ये सेलिब्रेशंस, ये आपकी तरफ से ही मिलती हैं पिता परमेश्वर और आपके द्वारा ही मिलती हैं। और आज हम अपने
प्रभु के जी उठने के दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दो प्रभु कि हम आप में परिपूर्ण होते जाएं, आप में बढ़ते जाएं और आपके प्रेम में, आपके प्यार में बढ़ते जाएं प्रभु। आपका धन्यवाद, सारे इंतजामों के लिए आपका धन्यवाद। ये वचन हमारा एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को ग्रीट करना आपको भाए प्रभु, स्वर्ग को भाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य पिता हैं। और उस रिजरेक्टेड पावर को प्रभु आज हम यीशु के नाम से प्रत्येक आपके बेटे और बेटी के ऊपर बोलते हैं पिता परमेश्वर कि हम भी आपके द्वारा उस पावर को रिसीव करते हैं। हम उस डिवाइन मिराकलस रिजरेक्शन पावर को पिता परमेश्वर रिसीव करते हैं अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन। May God bless all of us, and may the resurrection power of Jesus Christ bring agape love, forgiveness, love, hope, peace in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Happy Easter to all of you. Happy Resurrection Day to all of you. God bless. Thank you.